Hello, dear students of class 10. Welcome to session 1 on chapter 6. The name of the chapter is triangle. Now, all the basic things, okay, what kind of triangle we have, what are the classification, even congruence, all the theorems, Pythagoras theorem, we have studied in class 7, class 8, and in class 9. So, in class 10, what we are going to learn? So in class 10, in 6th chapter, we will learn about these 5 things. Okay. Whole the chapter is based upon these 5 topics. The first topic is similar figures. We will learn what are similar figures. And on this topic, exercise 6.1 is based. The second topic is similarity of triangle. This is fundamental topic, that is what are similar figure around us in our environment. And then we will go specifically about triangles, that what are similar triangle. Exercise 6.2 of NCERT textbook is based upon this topic. And the third topic is criteria for similarity of triangle. How we can classify two triangles as similar. So there are some rules, there are some criteria we will learn in session 3, and exercise 6.3 is based upon this third topic. Next topic will be areas of similar triangle. We find what are similar figure, then we find what are similar triangle, then criteria of the similar triangle, and then we will find areas of those similar triangle. And जहाँ पे ट्राइंगल की बात हो और पाइथागोरस थ्योरम का जहाँ पे हमारे पास जिक्र ना हो, है ना, उसका हमारे पास बात ना चले, ऐसा हो नहीं सकता है. सो in section 5 we will learn about Pythagoras theorem, and exercise 6.5 is based upon this Pythagoras theorem. So स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सिमिलर फिगर्स. बिफोर मूविंग टू सिमिलर फिगर, we let's recall our congruence figure from class 9. So what are congruent figures? We know that what are congruent figure. There are two circles. We can see there are two circles. When we overlap one circle on another, it will coincide on that first circle. Two circle exactly coincide with each other, hence given circle are congruent. ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है. सिमिलरली हम एक स्क्वायर लेके देखते हैं. यहाँ पे एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर है. अगर एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर पे हम ओवरलैप करें तो ये एग्जैक्टली इसका जो ये पेरीमीटर है वो नीचे के जो हमारा स्क्वायर है उसके पेरीमीटर को क्या करेगा, एग्जैक्टली उसको कोइंसाइड करेगा. मतलब उसकी यहाँ पे ये पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस. तो इसका सरकमफ्रेंस जो नीचे का सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर एग्जैक्टली क्या करेगा, ये कोइंसाइड करेगा. सो दीज आर congruent figures. Now, similarly, two squares are exactly coincide with each other, hence given square are congruent. The condition is like we have these two palms. Okay, if I will put one palm on another, it will coincide with each other. Okay, so I can say these two palms are congruent. If I will put my palm on a kid, on a kid's palm, like a 5-year-old kid, then his hand is obviously his palm is smaller, then that will not be congruent. Okay, so in that case that will be similar. So here we have a definition of congruence. Okay, so write down that definition. Two figures are said to be congruent if they have same shape and same size. If they have same shape and same size, it mean congruent कौन है, यहाँ पे दो चीजें हैं. एक क्या है, सेम शेप, एक है सेम शेप और एक है हमारे पास सेम साइज. ये दो कंडीशन जो फुलफिल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट. अब आते हैं हम अपने सिमिलर फिगर्स पे. तो सिमिलर फिगर्स क्या, देखो यहाँ पे एक सर्कल दूसरा सर्कल, और आप देख सकते हैं कि जो पहला सर्कल है वो बड़ा है और दूसरा जो है वो छोटा सर्कल है. तो इस केस में क्या
दूसरे सर्कल ने पहले सर्कल को कोइंसाइड किया? नो। ओवरलैप इसने इसके ऊपर आया है ये, बट इसने इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर ओवरलैप एग्जैक्टली नहीं किया है, कोइंसाइड नहीं किया है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? टू सर्कल आर नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, हैंस गिवन सर्कल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं, फिर क्या है? ये है सिमिलर। व्हाई? बिकॉज टू सर्कल हैज सेम शेप। सभी जितनी भी दुनिया में सर्कल है वो सब एक ही शेप के होंगे, दैट इज सर्कुलर शेप होगी, है ना, इसी शेप के होंगे। ऑब्वियसली ये सर्कल राउंड नहीं बन रहा है, ये राउंड बनना चाहिए। तो ऑल द सर्कल्स आर इन अ सेम शेप, in a same shape, the shape is circular। okay, next चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे, since all the circle has same shape therefore all circle are similar। नेक्स्ट यहाँ पे ये स्क्वायर है दो, ठीक है, स्क्वायर है तो इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा? देखो ये भी एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्क्वायर्स आर नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। ओके, ये हेंस है, हेंस टू स्क्वायर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे लिखा है हेंस। ओके, हेंस यहाँ पे लिखना डिफिकल्ट है, आप लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा है हेंस। ओके, हेंस टू स्क्वायर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑब्वियसली ये एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्या है ये क्या है? सिमिलर है, क्योंकि सभी स्क्वायर का सेम शेप होता है। कौन सा शेप होता है स्क्वायर का? स्क्वायर शेप होता है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में स्पेसिफिकली कौन सा है? ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का सभी स्क्वायर्स का एक ही शेप होता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। सो सभी स्क्वायर्स आप क्या होंगे? एक दूसरे को के सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलर फिगर का क्राइटेरिया है। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिल रही है, दैट इज सेम शेप, सेम शेप, है ना। तो हम बोल सकते हैं, अब ट्राइंगल के केस में देखते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल हमारे पास है, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी सभी साइड बराबर हो सकती है, और इसकी अपनी तीनों साइड आपस में इक्वल हो सकती है ना। सो वी कांट से दैट all the sides of this triangle is equal to this. No, we are talking about equilateral triangle. This is one equilateral triangle, this is another equilateral triangle. So these are not coinciding with each other. Okay, then hence given quadrilateral are not congruent, obviously congruent नहीं है, यहाँ से एक दूसरे पे इन्होंने coincide नहीं किया है। then two triangles, equilateral triangles have same shape। सभी quadrilateral, टू ही नहीं, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे हमारे पास, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगी, वो सभी क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि सभी का सेम एक है, सेम शेप है, सेम शेप है, और शेप क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। Since all equilateral triangle have same shape, therefore all equilateral triangle are similar। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज आ रही है हर जगह से, क्या आ रही है? सेम शेप, सेम शेप हर जगह पे। तो जिस भी दो फिगर की सेम शेप है वो क्या होगी? सिमिलर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड नो नेसेसरली द सेम साइज। साइज सेम हो चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा, बस जो मेन चीज है हमें वो है शेप उसकी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे दो इस तरह से स्क्वायर है, ठीक है, दो स्क्वायर है, और वो दो स्क्वायर आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर मैंने बनाया यहाँ पे, मान लो, ठीक है, ये दो कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन ये इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या करता है? कोइंसाइड करता है। हम बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट जो चीज है वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा होगी सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट जो चीज है वो हमेशा क्या होगी? सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की क्या कंडीशन थी? शेप सेम होनी चाहिए, है ना, कंडीशन थी शेप सेम होनी चाहिए, है ना, और उसका साइज भी सेम होना चाहिए। शेप और साइज सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो बस सिमिलैरिटी के लिए तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ शेप चाहिए। All the congruent figures are similar, but all the similar figures are not necessarily congruent. Make sure। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तीन पिक्चर दी हुई है, ठीक है, ताजमहल है। देयर आर थ्री फोटोग्राफ्स
and these three photographs are not congruent. Why these are not congruent? Let's see. Is this photograph coinciding on first? No. Is third photograph coinciding on these two? No. So these are not congruent. But these photograph are of same shape. इन सबका शेप क्या है? इन सबका शेप है कुछ ये हमें स्क्वायर शेप का लग रहा है ना, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये क्या है? सिमिलर है। अब इन फोटोग्राफ्स को देखते हैं। अमिताभ बच्चन यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, ठीक है। अगर हम इस केस में देखें तो कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल नहीं है, और इसके साथ साथ हमें ये सिमिलर भी नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि एक फोटोग्राफ कुछ अलग शेप की थी, दूसरी कुछ अलग शेप की थी, तीसरी कुछ अलग शेप की थी। तो these photographs are of same person, yes, but certainly they are not of the same shape. शेप इनकी सबकी सेम नहीं है। ओके, सो ये जो फोटोग्राफ्स है वो सिमिलर नहीं है, और कॉन्ग्रुएंट तो ऑब्वियसली होंगी ही नहीं। तो इट मीन कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर है, श्योर है। सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होगी, ये नेसेसरली नहीं है। सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये जरूरी हमारे पास नहीं है। और जो सिमिलर ही नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगी। बात क्लियर? तो अब ये हमारे पास हेक्सागन है, और डिटेल में और देख लेते हैं। ये दो हमारे पास क्या है? हेक्सागन्स है। हेक्सागन को हमने ये कोइंसाइड किया, तो इसने इस पे कोइंसाइड एग्जैक्टली नहीं किया है, ठीक है। इसने इसकी पेरीमीटर को कोइंसाइड नहीं किया है, तो हम बोलेंगे टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ दो पॉलीगन जिसकी साइड्स क्या है? सेम नंबर की साइड है। इसमें 6 नंबर है, इसमें भी 6 है, मतलब इसकी 6 नंबर ऑफ साइड्स है, इसकी भी 6 नंबर ऑफ साइड है। हेक्सागन है दोनों। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है, ठीक है। और अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंड सो ऑन, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए, ठीक है। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है, ओके। देन दूसरा है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। अब ये जो पॉइंट है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा हूं मैं, पर यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये हुई, ठीक है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये हुई, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ये हुई। ये इक्वल नहीं, यहाँ पे दिया है इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या? रेशियो। रेशियो यहाँ पे देखो, सेम रेशियो होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ओके, और ये 2 सेंटीमीटर है, तो इनका रेशियो क्या बना? इसका रेशियो बना 2/4। तो 2/4 से हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो ये बनेगा 1/2। 1/2 बना है। अब इन दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/2 बना है, तो यहाँ से भी हमें 1/2 ही आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर होता, ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं क्योंकि हेक्सागन है। अगर रेगुलर हेक्सागन की बात करें हम, रेगुलर नहीं भी है, मान लो ये 8 है और ये 4 है, अगर हम इसका रेशियो लें तो ये रेशियो बनेगा 4/8। 4/8। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा? 1/2। तो देखो इसका रेशियो बराबर आ रहा है ना। इसका रेशियो दोनों का क्या आ रहा है? बराबर। अगर ये सभी रेशियो 1/2 है, तो इट मीन ये 2 हेक्सागन क्या है? ये 2 हेक्सागन है सिमिलर। बात पता लगी? करस्पॉन्डिंग एंगल तो हम बता सकते हैं, ये एंगल इक्वल होना चाहिए। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये 70 है तो ये भी 70, ये 80 है तो ये भी 80। अगर इसके साथ साथ एक चीज फुलफिल हो रही है, सिमिलर है, नहीं, दूसरी भी हमारे पास कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अभी ये अगर अच्छे से समझ नहीं आया, डोंट वरी, आगे हमारे पास जब हम थेल्स थ्योरम करेंगे और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो वहां पे इजिली अंडरस्टूड हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं इस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 6.1। पूरी की पूरी जो हमने चीजें पढ़ी हैं उस पे ही बेस्ड हमारी 6.1 एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड इन गिवन ब्रैकेट्स। ओके, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में करेक्ट वर्ड यूज करना है इन दोनों में से। बोलता है ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल क्या है? कोई सर्कल इस तरह का हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई सर्कल बड़ा हो सकता है। तो क्या इनके साइज, साइज में साइज बोल रहा हूँ, साइज से कंपेयर किससे करेंगे हम? रेडियस से। क्या इनका साइज
सेम है? नो, ऑब्वियसली इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका एरिया ग्रेटर है, इसका लेस है। तो साइज तो सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट का हमने बता नहीं सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो कैंसिल हो गया। क्या सिमिलर है? अब सभी सर्कल है, सभी सर्कल की एक ही शेप होती है, दैट इज सर्कुलर। तो यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ऑल स्क्वायर्स आर, ऑब्वियसली स्क्वायर स्क्वायर शेप है, तो शेप उसकी सभी स्क्वायर्स की एक ही होती है, तो ये भी सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे दिया होता कि 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, ठीक है, दो स्क्वायर है, ये दो स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे, एंड the side of this square is 2 centimeter and this is also 2 units, say, then we can say these two triangles are of same size। शेप तो है ही है, स्क्वायर है, तो सेम साइज भी होता है इसका, तो क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट होता है। बट इस केस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, सो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख लो। नेक्स्ट हमारे पास है, all dash triangle are similar, which triangle are similar? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या सभी आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर है? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, है ना? दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। वी आर गिवन विद टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आर दी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? आइसोसेलेस, अब आइसोसेलेस में क्या है, सिमिलर के लिए क्या था कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और हमारा जो एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल। बट इस केस में क्या होगा, देखो, अब हमें पता नहीं है कि इसकी कौन सी दो साइड इक्वल है। इनकी ये साइड इक्वल हो सकती है और इसकी ये दो साइड इक्वल हो सकती है, तो इट मीन हमें पता नहीं है कि कौन सी साइड इक्वल होगी। अगर हम बोलते कि ये साइड भी तीनों इक्वल है, इक्विलेटरल है, ये तीनों भी इक्वल है, तो इस केस में हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तब हमें कोई लेना देना नहीं है कि इसका साइज कितना है और इसका साइज कितना है। साइज मैटर करता है किसके लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए। बट शेप हमें देखनी है, सिर्फ सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी बोला है ना इसने, सिमिलर, तो हमें सिर्फ शेप देखनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारी ये सिमिलर होगी। आइसोसेलेस के लिए क्यों सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सी दो साइड इक्वल है। इसकी ये दो साइड इक्वल हो सकती है और इसकी ये ऊपर वाली दो साइड इक्वल हो सकती है। इट मीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं आएगा, और मोर ओवर इसका एंगल भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, ये आप मुझे बताओगे ग्रुप में और कमेंट सेक्शन में कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों सिमिलर नहीं होंगी। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया कि मैंने बता दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर है, आइसोसेलेस क्यों नहीं होगी इक्वल, या बताएंगे मुझे। फोर्थ आ गया, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर of side are similar if their corresponding angle are, क्या था, एंगल आर इक्वल। एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, एंगल इक्वल, एंड देयर corresponding sides are of dash, देयर corresponding sides are dash, बट इक्वल होंगी, नो, प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब सेम रेशियो की होंगी, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनल। तो इक्वल एंगल होने चाहिए और corresponding sides क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इन दोनों का रेशियो corresponding का 1/2, तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, देन दैट मीन इनकी साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। इन दोनों ट्राइंगल की साइड प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, ये क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए हमारे पास दो क्राइटेरियाज है, एक है एंगल इक्वल, दूसरा है corresponding साइड आर प्रोपोर्शनल। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन 2 आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे बताओगे करके। एंड क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। इसमें तो मतलब हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सिंपली हम क्या देखेंगे, हम एंगल्स को देखेंगे। यहाँ पे देखो वर्ड क्या दिया है, सिमिलर। सिमिलर के लिए डायरेक्टली पहले एंगल को देखो, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ये 90 डिग्री का है।
ये 90 है सभी, यहाँ पे कुछ अलग ही एंगल है, तो ये सिमिलर ऑब्वियसली नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। तो ज्यादा हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले एंगल देखो, एंगल इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लो। अब इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो इक्वल आएगा 1.3/3, 1.5/3, सभी का 1.5/3 है, तो यहाँ से रेशियो तो सेम आएगा सबका, है ना, 1.5/3, तो ये बन जाएगा 15/30, तो यहाँ से आ जाएगा हमें कितना आएगा ये 1/2, 1/2। तो प्रोपोर्शनल है, साइड तो प्रोपोर्शन है, बट एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज सिमिलर फिगर। आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका है। जो समझ नहीं आया है, डू लेट मी नो, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।